So on Wednesday, I told you about the FDMA. मैंने आपको FDMA के बारे में कुछ बताया था about the channel bandwidth. मैंने आपको channel bandwidth के बारे में बताया था. This was the channel bandwidth. This was the guard band. And I've told you about the total bandwidth, the reverse channels, the forward channels and the protecting bandwidth. ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अबाउट दी FDMA मैंने आपको बताई थी. All these things I have told you. इन दी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के अंदर मैंने आपको ये बताई थी कि 3 तरह की टेक्निक्स हैं हमारी, FDMA, TDMA एंड CDMA. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको FDMA के बारे में बताया था, इन विच ईच यूज़र हैव गिवन ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. हर यूज़र को एक फ्रीक्वेंसी दी गई है एंड जब तक यूज़र फ़ोन पे बात करेगा तब तक उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेगा. सो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन. तो individual frequencies are given to the each user and that is shown in brief in this block diagram, that there is a particular user, 1 is given a frequency, 2 is given particular frequency, 3 is also given a frequency, 4 is given a frequency. So all these frequencies are separated from each other with the help of guard band, and the total bandwidth is equal to W is equal to N. N is the number of users into WC. WC is the subband. And to separate so that there is no overlapping, we have protected the reverse and the forward channels. The reverse and the forward channels are also protected from each other with the help of a protecting band. So this is the figure which I told you in the last lecture. आपको last lecture में मैंने आपको इस FDMA के बारे में बताया था. अब मैं कुछ और बताऊंगा FDMA के बारे में. Some more things I will tell you in detail about FDMA. This FDMA topic is if I open wait a minute, if I open your syllabus, then you will find out that the topic which we are discussing right now, this is your book Wireless Communication, and the topic which we are discussing right now is multiple access techniques for wireless communication. And we have covered this topic, introduction to multiple access, FDMA, TDMA. Okay, these topics I will cover, but actually right now हम topics तो ये cover कर रहे हैं, मगर हम जो पढ़ रहे हैं अभी, हमारा जो topic है वो पढ़ रहे हैं मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम. हम पढ़ तो ये टॉपिक रहे हैं, मगर इसके अंदर अगर FDMA आ गया है तो मुझे आपको FDMA को इलेबोरेट करके बताना पड़ेगा. सो अल्टीमेटली वी आर कवरिंग दी थर्ड सेक्शन आल्सो. And this multiple access is very important to you. Why it is important? Because the same topic you will discuss, that will be discussed with you in the satellite communication. Satellite communication के अंदर भी आप ये टॉपिक आपके आगे दोबारा आएगा, the multiple access. So this topic you will again learn in detail in satellite also. So यहाँ मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बताऊँगा, वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे तो आपको थर्ड यूनिट आपको ज़्यादा ही आसान लगने लगेगी. सो मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी हम टॉपिक तो पढ़ रहे हैं मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, और हम कवर कर रहे हैं दी सेक्शन C आल्सो. ओके, सो दिस इज़ दी FDMA. नाउ आई विल डिस्कस सम मोर important points of FDMA. First of all, the frequency. Receiving frequency is, I've told this many times to you, the receiving frequency is this one,
that is from the base station to the mobile is this frequency 869 to 894, and from mobile to the base station the transmission frequency is 824 to 849 megahertz, and there is a gap of around 20 megahertz between the transmission and the reception. This is known as the protecting bandwidth. This is known as the protecting bandwidth. Okay, so these are the frequencies. There are 832 channels. हमारे पास जो frequency allocated है, that is हमारी जो frequency है, from here we can find out this is only 25 megahertz. हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओनली एंड ओनली 25 मेगाहर्ट्ज़. तो उसके अंदर से हमारी जो बैंडविड्थ है एक चैनल की, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, ये जो बैंडविड्थ है, दिस बैंडविड्थ इज 30 किलोहर्ट्ज़. ये जो बैंडविड्थ है 30 किलोहर्ट्ज़ की है. तो इससे अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो हमारे जो चैनल बनते हैं वो बनते हैं 832. ओके, हमारी जो मॉड्यूलेशन स्कीम हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंशियल QPSK. जो हमने यहाँ यूज़ की मॉड्यूलेशन स्कीम दैट वाज DQPSK FDMA के अंदर. What is modulation scheme and what is QPSK? You will study this topic and why we need modulation. Without modulation हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन या आप कहें आपका कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल. हमारे मॉड्यूलेशन के बिना इसके बिना हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन या डेटा कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉसिबल. मॉड्यूलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हमें मॉड्यूलेशन पढ़ना है और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए, बिकॉज दिस टॉपिक यू आर स्टडिंग इन डेटा कम्युनिकेशन. डेटा कम्युनिकेशन के अंदर आप मॉड्यूलेशन को पढ़ रहे हैं और ये मॉड्यूलेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. आई विल गिव यू एन असाइनमेंट ऑन द मॉड्यूलेशन आल्सो, and it is very important in the communication. Communication is not possible without modulation. So modulation की काफ़ी सारी schemes हैं, ASK, FSK, QPSK, PSK, 8PSK, QAM. तो ये सब आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ भी रहे होंगे और आपने पहले भी पढ़ी हैं. तो मॉड्यूलेशन स्कीम्स जो हैं उनमें से हमने जो FDMA की मल्टीपल एक्सेस के अंदर जो यूज़ की है दैट इज़ दी डिफरेंशियल QPSK. मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है और हम फिज़िकली प्रेजेंट भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको मॉड्यूलेशन के बारे में और ज़्यादा एलेबरेट करके बताता. सो राइट नाउ आई विल रिलाई टोटली ऑन द डेटा कम्युनिकेशन. आप डेटा कम्युनिकेशन के अंदर ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो मैं रिलाई करूँगा कि आपको ये आता होगा मॉड्यूलेशन स्कीम को. तो आपको अगर नहीं भी आता है, अगर आप नए हैं इस टॉपिक के बारे में, तो आपको डेटा कम्युनिकेशन के अंदर ये टॉपिक ज़रूर चल रहा होगा आपका और आपको वहाँ से ये ज़रूर पढ़ना है. ठीक है. हाँ, उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी इशू आता है तो ही कैन मैसेज मी एनी टाइम दैट टू एलेबरेट हाउ मॉड्यूलेशन इज़ वर्किंग. ओके, बस मगर हमारे टॉपिक ज़्यादा डिटेल में हम मॉड्यूलेशन को वायरलेस कम्युनिकेशन में नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डीप में इसके अंदर नहीं जाऊंगा. बस मैं ये बताऊंगा कि हमारी जो स्कीम हमने यूज़ की है FDMA के अंदर दैट इज़ दी डिफरेंशियल QPSK. QPSK की फुल फॉर्म है क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की. सो दिस वाज द मॉड्यूलेशन स्कीम्स विच वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन. द बिट रेट वाज 48.6 kbps. And this whole scheme was used where? Here in the AMPS Advanced Mobile Phone System के अंदर हमने इस स्कीम को यूज़ किया. और जो हमारी डुप्लेक्सिंग जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, हमने जो डुप्लेक्सिंग इसके अंदर यूज़ की दैट वाज द फ्रीक्वेंसी डिवीज़न
डुप्लेक्सिंग मैंने आपको बताया था, हमारे मोबाइल जो रिसीवर है उसके ऊपर हम ट्रांस रिसीवर यूज़ करते हैं। तो जो ट्रांस रिसीवर है उसके अंदर जो दैट टेक्निक विच वी यूज़ एट द ट्रांस रिसीवर इज़ डुप्लेक्सिंग। हम डुप्लेक्सिंग को यूज़ करते हैं और उसके दो टाइप्स हैं, FDD एंड TDD। तो FDD हमने इसके अंदर यूज़ की FDMA के साथ। सो यहाँ इंटर सिंपल इंटरफेरेंस यानी कि हमारी जो इंटरफेरेंस थी फ्रॉम दी अदर मोबाइल्स वाज वेरी लो। सो दिस वाज वेरी गुड स्कीम विच वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी स्कीम थी। हमने फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इन सारी टेक्निक्स को यूज़ किया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, FDMA को बताओ और उसके अंदर कौन कौन से स्कीम्स हमने यूज़ किए हैं, FDD की हमने कौन सी डुप्लेक्सिंग यूज़ की है। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FDMA और फर्स्ट जनरेशन और दी एनालॉग सेलुलर सिस्टम। एनालॉग सेलुलर सिस्टम जो हमारा टॉपिक है, अगर मैं आपका सिलेबस निकालूँ, राइट डाउन अबाउट द एनालॉग सेलुलर सिस्टम। एनालॉग सेलुलर सिस्टम क्या है? दैट इज़ द AMPS है। तो अगर एनालॉग सेलुलर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है तो हमें यही चीज़ बताना है कि उसकी रिसीविंग ये थी, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ये थी, उसके अंदर ये चैनल्स यूज़ की गए, मॉड्यूलेशन स्कीम्स हमने ये यूज़ की, बिट रेट ये यूज़ किया, डुप्लेक्सिंग हमने ये यूज़ की, और इंटर सिंबल से इंटरफेरेंस वाज आल्सो लो इन दी फर्स्ट जनरेशन ऑफ एनालॉग सेलुलर सिस्टम। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ FDMA channels. Find out the total number of FDMA channels. This is the next topic. कितने हमारे नंबर ऑफ चैनल्स हो सकते हैं इफ़ वी आर यूजिंग द मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल टेक्निक अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे। तो उसका एक फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है जिसके अंदर n इज़ द नंबर ऑफ चैनल्स इज़ इक्वल टू BT. This is BT. I will write it because it is written very small. It is BT minus 2 into BG divided by BC. So this is the formula to find out the total number of channels. BT is the total bandwidth, BG is the guard band minus 2 guard bandwidth, and BC is the bandwidth of the channel. If I go to the previous slide, here to find out sorry, I have to remove all this. Here you will find out, we have to find out this term n. So n is equal to, मैं फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, n is equal to BT. BT is the total bandwidth minus 2 into BG. BG, what is BG? BG is this, divided by BC. BC क्या है? BC is the channel bandwidth. ये जो हमारी bandwidth है, this is BC. So this is the formula. So this is the formula, BT minus 2BG divided by BC. On this there is a numerical. So there is a numerical in which it is written there, if there is a total spectrum FDMA के ऊपर कई बार आपके एक numerical भी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर,
तो फार्मूला ये है, हमारी लैंग्वेज, हमारे मैंने जो एग्जांपल लिख रखा है उसकी बजाय कुछ और पूछा जा सकता है, तो हमें ये फार्मूला याद रखना है। तो एक इस फार्मूले पे रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने आपके लिए। हेलो हेलो, इज माय वॉइस इज क्लियर? हेलो, माय वॉइस इज क्लियर? Sorry, there was a internet issue, so my call was disconnected. So this was, I was discussing with you about the total spectrum, that is 12.5 is there. The B guard band is 10 kilohertz and is 30 kilohertz is the channel bandwidth. Find the number of channels in FDM. So this is the solution of this. There is a B total bandwidth is 12.5 megahertz, BG is 10 kilohertz and BAC is 30 kilohertz. So we have calculated the total number of channels, 12.5 megahertz minus 2 into 10 kilohertz divided by 30 kilohertz. So we will find out, and there are 416 number of channels which are there in the AMPS. हमारा जो फर्स्ट जनरेशन या एनालॉग सेलुलर सिस्टम था उसके अंदर हमारा जो बैंडविड्थ थी दैट वाज 12.5 मेगाहर्ट्ज। तो हमारे जो चैनल बन रहे हैं वो 416 बन रहे हैं। ओके, so now there are some advantages and disadvantages of FDMA. I will not discuss these advantages and disadvantages. You will find out these in your book, and I have uploaded this PPT also. You can read the advantages and disadvantages of FDMA. Now the next I will discuss with you is about the TDMA, time division multiple access. This was the technique which we used in second generation, or you can say we used this in digital cellular system. डिजिटल सेलुलर सिस्टम के अंदर भी हमने इसको यूज़ किया. डिजिटल सेलुलर सिस्टम वाज बेस्ड अपॉन द TDMA technique. Okay, so I will
So this is the first definition. Instead of splitting the original radio frequency channel into two radio frequency sub channels, it is instead split into time slots. पहले हमारा जो चैनल था वो एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए था. अब हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर चैनल के हमने सब चैनल बना दिए, और दैट सब चैनल्स आर बेस्ड अपॉन दी टाइम स्लॉट्स. So the transmitted radio frequency is identical in each slot. हर slot एक particular user को दे दिया, but each slot is capable of carrying a separate conversation. हर एक slot के अंदर different users आपस में interact कर रहे हैं. So इसका advantages क्या हुआ, हमारे पास multiple channels per carrier. एक channel के ऊपर पहले जिसके ऊपर एक ही user था, अब उसके ऊपर हमने टाइम स्लॉट्स बना दिए, और अब हमारे पास एक से ज़्यादा यूज़र एक पर्टिकुलर चैनल के ऊपर हो गए. सो दिस वाज यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ सेलुलर सिस्टम. हमारे सेकंड जनरेशन के अंदर हमने इसको यूज़ किया. 2G अभी मैंने बताया सेकंड जनरेशन, या फिर आप कह सकते हैं डिजिटल सिस्टम के अंदर हमने इसको यूज़ किया. किसको? TDMA. सो दिस इज़ द TDMA टेक्निक. अब पहले हमारा जो ग्राफ था वो हॉरिजॉन्टल था, अब हमारा जो ग्राफ है दैट इज़ वर्टिकल. एक ही फ्रीक्वेंसी को हमने काफ़ी सारी यूज़र्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ये हमारा एक चैनल है, इस चैनल के अंदर हमने टाइम स्लॉट्स बना दिए, और काफ़ी सारे यूज़र्स, अब एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में एक यूज़र बात करेगा, दूसरे टाइम स्लॉट में दूसरा यूज़र बात करेगा, तीसरे टाइम स्लॉट में तीसरा, चौथे में चौथा. सो दिस इज़ TDMA. सो अब हम स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे जैसे हमने FDMA की पढ़ी थी. सो दिस अलाउज लार्जर ट्रांसमिशन रेट. सबसे पहला पॉइंट ट्रांसमिशन रेट, यानी कि हमारा डेटा रेट इसके अंदर बढ़ गया. FDMA के अंदर डेटा रेट हमारा कम था, और TDMA के अंदर हमारा डेटा रेट ज़्यादा है. हमने स्टार्टिंग में इसको यूज़ किया FDMA के साथ कंबाइन करके, मगर बाद में हमने क्या किया, हमने इस FDMA के सिस्टम को ही बंद कर दिया, इसको हमने काटा लगा दिया, और हमने स्टार्ट किया ओनली TDMA. सो बेस्ड ऑन द आइडिया टू ब्रेक द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी इनटू 8 टाइम स्लॉट्स, हमने सबसे पहले 8 टाइम स्लॉट्स के अंदर बनाया. एक टाइम स्लॉट की जो लेंथ थी दैट वाज 0.577 millisecond, and the total bandwidth of the channel was 4.615 millisecond, and it is referred to as a frame. इसको हम TDMA के अंदर फ्रेम कहते हैं, फ्रेम. So each mobile device uses a particular time slot that is known as a frame, and different from slots used by the other users, जो कि दूसरे यूज़र से डिफरेंट है. सो किस तरह के टाइम स्लॉट हैं? सो दिस इज़ द फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ द TDMA. TDMA का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको दिखा रखा है, आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा. दीज आर द टाइम स्लॉट्स, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट I, स्लॉट 8. हमने मैक्सिमम 8 टाइम स्लॉट बना रखे हैं. तो 8 टाइम स्लॉट्स के अंदर जो हमारा फ्रेम जो सिस्टम बनता है दैट इज़ नोन एज ए फ्रेम. इसको हम फ्रेम बोलते हैं. तो ये हमारा एक फ्रेम है जिसके अंदर हमारे 8 टाइम स्लॉट्स हैं. इसी तरह हमारे काफ़ी सारे फ्रेम्स हैं जिसके हर फ्रेम के अंदर हम जो टाइम स्लॉट्स हैं दैट आर 8. सो दिस इज़ ए मल्टी फ्रेम सिस्टम ऑफ TDMA. नाउ व्हाट इज़ ए टाइम स्लॉट? टाइम स्लॉट क्या है? इस टाइम स्लॉट के अंदर क्या आता है? तो दैट इज़ एलेबोरेटेड हियर. सबसे पहले टाइम स्लॉट के अंदर आता है गार्ड टाइम, फिर आता है प्रीएम्बल, फिर आता है मैसेज, फिर आता है पोस्ट एम्बल, एंड देन फाइनली कम्स दी गार्ड टाइम. तो ये क्या टर्म्स हैं ये मैंने लिख रखी हैं. सबसे पहले बात करते हैं गार्ड टाइम की. सो इंटरवल बिटवीन बर्स्ट यूज टू अवॉइड ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग गार्ड टाइम है, तो ओवरलैपिंग से बचने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं. सो टू अवॉइड द ओवरलैपिंग सो वी यूज़ गार्ड टाइम. प्रीएम्बल.
प्रियम्बल क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द बर्स्ट, पहला जो पार्ट है बर्स्ट का, दैट इज नोन एज द प्रियम्बल। मैसेज, हमारी जो इन्फॉर्मेशन जा रही है या हमारा जो डेटा जा रहा है वो FDMA, अगर मैं FDMA की बात करूँ, जो मैंने पहले अभी बताया, FDMA के अंदर जो डेटा जाता है दैट इज़ कंटिन्यूस डेटा। FDMA के अंदर हमारा जो डेटा जा रहा है if I talk about FDMA, the data which is going in FDMA FDMA के अंदर जो डेटा है दैट इज एनालॉग। एंड एनालॉग और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कैसे? लाइक ए वेव, साइन वेव, कोसाइन वेव। So this is a continuous data, but in TDMA data is not analog। क्या है डेटा? डिजिटल। सो कंटिन्यूस नहीं है, तो यानी क्या है? इन द फॉर्म ऑफ नॉट कंटिन्यूस और बर्स्ट। बर्स्ट की फॉर्म में जाता है। कैसे जाता है? इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, आइदर 0 आइदर 1। सो इट इज ए डिस्क्रीट, इट इज 1 0 1 0 1। So this is a burst data which goes in TDMA, in digital, and in FDMA analog, continuous, and wave, sine wave or cosine wave। Okay, so the data, the message is goes in the form of a burst। burst की फॉर्म में हमारा इंफॉर्मेशन हमारी जाती है। So next is the post-amble। post-amble is the last part of the burst used to initialize the following burst। post-amble यानी कि हमारा डेटा अब ख़त्म हो गया है, अब लास्ट में जो आएगा that is the guard time। So this is slot 1, similarly slot 2 is there, slot I, slot 8, so it makes a frame। So this is the elaboration of time division multiple access, जहाँ हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, एक ही हमारा चैनल। हाँ हाँ, बताओ। हाँ, ये शो कर रखा है ना मैंने, अंकुश बोल रहा है ना। अंकुश देखो, ये मैंने दिखा रखा है स्लॉट, दिस इज़ द स्लॉट। अभी स्लॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें है वो मैंने आपको बता रखी है। गार्ड टाइम बताया मैंने आपको, प्रीएम्बल, मैसेज, पोस्ट एम्बल और गार्ड टाइम। ये एक स्लॉट है हमारा, ये स्लॉट, दिस इज़ ए स्लॉट। ये जो सारे दिख रहे हैं स्लॉट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। यही मैंने यहाँ दिखाया आपको, 1 2 अप टू 8। तो दीज आर दी स्लॉट्स। इन स्लॉट्स के अंदर क्या है? वो है गार्ड टाइम, प्रीएम्बल, मैसेज, पोस्ट एम्बल और गार्ड टाइम। तो यहाँ पे भी यही दिखा रखा है। फ्रीक्वेंसी हमारी जो है, एक ही फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड कर दिया इनटू टाइम स्लॉट्स। दीज आर द टाइम स्लॉट्स। और पहले क्या था, इस पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी पे, ये जो पूरी फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर एक ही फ़ोन यूज़ हो रहा था बस। मगर अब क्या हो गया है, अब हमने अपना सिस्टम बढ़िया बना दिया है, डेटा रेट इंक्रीज़ हो गया है, और अब एक ही फ्रीक्वेंसी पे काफ़ी सारे यूज़र्स अब बात कर रहे हैं फ़ोन पे इन दी टाइम डिवीजन, टाइम में डिवाइड करके मल्टीपल एक्सेस को। जहाँ एक टाइम पे एक ही यूज़र फ्रीक्वेंसी FDMA में यूज़ हो रहा था, एक ही इस चैनल के ऊपर एक ही यूज़र बात कर रहा था, अब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर
काफ़ी सारे यूज़र बात कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज ओवर द FDMA। नंबर ऑफ़ यूज़र्स FDMA के अंदर कम थे, मगर TDMA के अंदर नंबर ऑफ़ यूज़र्स अब इस टेक्निक के कारण ज़्यादा हो गए, इंक्रीज़ हो गए। सो दिस वाज ए वेरी बेटर टेक्निक एज़ कम्पेयर टू FDMA। तो हमारे पूरे सिलेबस में मैं जब भी कोई टॉपिक बताऊंगा, सबसे पहले मैं FDMA की बात करूंगा या फर्स्ट जनरेशन की बात करूंगा, मगर फिर उसके बाद मैं सेकंड जनरेशन की बात ज़रूर करूंगा और मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि फर्स्ट जनरेशन के बजाय सेकंड जनरेशन के अंदर हमने क्या इम्प्रूवमेंट की हर टॉपिक के अंदर, आगे जो भी टॉपिक आने वाले। मगर बेसिक डिफरेंस क्या है, FDMA वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन एंड TDMA वॉज यूज इन दी सेकेंड जनरेशन। Okay, so now similarly there is a formula for finding the number of channels। उसी की तरह हमारा फार्मूला है BT माइनस 2BG डिवाइडेड बाई BC, मगर यहाँ एक और टर्म आ गई है दैट आपको दिख रही होगी M, एक नई टर्म और इंक्लूड हो गई है। हमारे प्रीवियस जो FDMA का फार्मूला था वो ये युगा ही वही फार्मूला है, बट यहाँ एक और टर्म यूज़ कर दिया हमने M। सो व्हाट इज़ M? M इज़ द नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स। टाइम स्लॉट्स कितने हैं दैट इज़ रेफर टू एज M। सो यहाँ एक एग्जांपल लिया है, कंसिडर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल विच इज़ ए TDMA / FDD system that uses a 25 MHz of forward link which is broken into radio channels of 200 kHz। देखिए हमारी जो पहले बैंडविड्थ थी वो 30 kHz की थी, अब हमारी बैंडविड्थ कितनी हो गई है 200 kHz। तो यानी कि हमारी जो ट्रांसमिशन रेट है या डेटा रेट है या हमारे जो स्पीड है वो हमारी 6 टाइम्स, जहाँ 30 kHz हमारी जो बैंडविड्थ थी चैनल की, अब वो 200 kHz यानी कि लगभग 6.5 गुना हमारी डेटा रेट की स्पीड बढ़ गई है इन सेकंड जनरेशन। सो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर्स, तो उसके लिए वही फार्मूला लगाया गया है। N फाइंड आउट करना है, BC इज़ 20 25 MHz और हमारा जो चैनल है दैट इज़ BC दैट इज़ 200 kHz। और यहाँ हमने कंसिडर किया है गार्ड बैंड इज 0, सो दिस टर्म इज 0 बिकॉज इट इज रिटन इफ देयर इज नो गार्ड बैंड फाइंड द नंबर ऑफ यूजर्स। सो दिस इज 0, 25 MHz डिवाइडेड बाय 200 kHz मल्टीप्लाइड बाय 8 टाइम स्लॉट्स विच आर गिवन आर 8। सो द नंबर ऑफ यूजर्स आर नाउ 1000 साइमल्टेनियसली यूजर्स आर देयर। वहाँ कितने थे 416 यूज़र थे FDMA के अंदर, हमने अभी लास्ट वो पढ़ा था। तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स वर ओनली कितने 416, और अब हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने बन गए हैं 1000 इन TDMA। FDMA के अंदर ये थे और TDMA में नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी हमने इंक्रीज़ कर दिए, डेटा रेट को भी इंक्रीज़ कर दिया और एनालॉग की बजाय डिजिटल डेटा हमने ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ वॉइस ही जा रही थी, मगर अब हमारे सेकंड जनरेशन GSM के अंदर वॉइस भी जा रही है और डेटा भी जा रहा है। डेटा का मतलब क्या है, अब हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है क्या इंटरनेट आ गया है सेकंड जनरेशन के अंदर, ठीक है जी। सो एफिशिएंसी इज़ नॉट इन आवर टॉपिक, सो आई विल नॉट डिस्कस द एफिशिएंसी ऑफ TDMA। सो आज के लिए मैं इतना ही फिनिश करता हूँ। फ्रॉम मंडे आई विल डिस्कस दिस टॉपिक द सेकंड जनरेशन फ्रॉम योर सिलेबस, द सेकंड जनरेशन सेलुलर नेटवर्क, सेकंड जनरेशन सेलुलर नेटवर्क। इसको मैं डिटेल में पढ़ूंगा, बताऊंगा आपको फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, और सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की मैं आपको बात बताऊंगा कुछ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे WLL, वायरलेस LAN, ब्लूटूथ एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। ठीक है जी। तो आज की जो क्लास है हम यहीं फिनिश करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक योर अटेंडेंस, सॉरी। तो अटेंडेंस आज की हम ले लेते हैं। सबसे पहले अभिषेक, चैट के अंदर आपको यस करना है। नेक्स्ट इज अभिषेक कुमार, रोल नंबर 38। अजीत, अमन, अंकित, अंकुश, अनुराग, अर्जुन, आशीष, आशुतोष, आयुष त्रिपाठी, आयुषी, भूपेंद्र, दक्ष, दुष्यंत, गौरव कुमार, रोल नंबर 32। गौरव, रोल नंबर 48। सॉरी, गौरव, रोल नंबर 43। हर्ष, हेमंत, हिमांशी, हिमांशु, मनीत, मयंक, मोहम्मद, मोहित, मुकुल, मुस्कान, मुस्कान नरूला, नमन जैन, नैन्सी दक्ष, निशिता, पारस, पीयूष, पीयूष मलिक, रोल नंबर 44। पूजा, राघव, राहुल, 71, रोल नंबर 71, राहुल, राहुल यादव, रोल नंबर 61। राजेश कुमार, राशि मल्होत्रा, राजेश कुमार, रोल नंबर 20। ऋत्विक, संदीप, सत्यम, शौकत, सोनू, सुमित यादव, सुप्रिया, तनिष्क, टिंकू, तुषार, उत्कर्ष, वर्टिक, विजय, विशाल, रोल नंबर 6 एंड विशाल, रोल नंबर 9। ओके, हाँ कौन?
अंकुश की रहेगी। ठीक है, चलो ठीक है, मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ।